দিদি কাজ যে করছে ভালোই কাজ করছে, ভালো আছে এখানে। এই যে দিদির নামে এই যে এত দুর্নীতির কথা আসছে, এই যে দুর্নীতি স্কুল থেকে শুরু করে প্রতিটা গভর্নমেন্টের সেক্টরে দুর্নীতির কথা বারবার উঠে আসছে এবং সেটা কোর্ট পর্যন্ত যাচ্ছে, এটাকে নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন বা কিভাবে দেখেন এটাকে? আমরা এইটা তো কি দিদি যা করছে এখানে ঠিক করছে। 1998 में बंगाल में कौन लाया था बीजेपी को? हाथ पकड़ के बीजेपी को लाया था ममता बनर्जी बंगाल में। तृणमूल आके बोलेगा जो हम बीजेपी विरोधी है और वो भी हमको मानना पड़ेगा। आज देखिए পাবে সিপিএম সিট পাবে, কিন্তু 5টা 6টা পাবে এবারে। পুলিশের দাদা এক্ষুনি বলুন না, পুলিশের আর কথা বলুন না। পুলিশ এক্ষুনি গাড়ি ধরছে, গাড়ি ধরে বলছে কাগজটা দেখি, কাগজটা কিছু ফোল্ড আছে, তো বলছে 3000 টাকা কেস আছে। 3000 টাকার মধ্যে যখন আপনার 2000 টাকার স্পটটা করে দিন, 1000 টাকা কেস করে দিচ্ছি, 5000 টাকা কেস আছে। আগে তুললাম ময়লাটাকে। আমরা এখানকার নাগরিক, যা করবে আমাদের জন্য সুবিধা যে পার্টি করবে তার জন্য আমরা আছি। আমাদের জন্য যে সুবিধা করবে না সেই পার্টি আমরা চাই না। আমরা পার্টিকে ভোট দেবো কিসের জন্যে? আমাদের সুবিধার জন্যে। যখন আমাদের সুবিধা থাকবে না তো আমরা ভোট দিয়ে কি করব? পার্টি এখন আসছে, সব হাত জুটছে, সব ভোট চাইছে। ভোটের সময় সব আসুক, তারপরে যে জিতে যায় তারপরে সব পাবলিককে সব ভুলে যাচ্ছে। এখানকার এই যে নাগরিক আছে, পিলখানার নাগরিক আমরা আছি, এখানে অটো ড্রাইভার আছে, সব লোকাল ছেলে এখানে আছে। এইখানকার ছেলেদেরকে সব দেখবে তো আমরা সব ভোট ওনাইকে দেবো। আপনাদের দাবিটা কি অ্যাকচুয়ালি? যে দেখবেন বলছেন, আপনারা কি চাইছেন? ট্রান্সপোর্ট লাইন পুরো শেষ হয়ে গেছে, পুরো শেষ। ট্রান্সপোর্ট লাইন যে আছে পুরো শেষ। 500 টাকা কেস আছে, ট্রান্সপোর্ট লাইন পুরো শেষ। কেন এরকম বলছেন কেন? জিজ্ঞেস করো দিদি। কেসের জন্য? হ্যাঁ, 500 টাকা কেস। মিনিমাম 500 টাকার কেস। গরিব কামাচ্ছে 300 টাকা, 200 টাকা বাড়ি থেকে আসবে। মানে আপনি যত রোজগার করেন তার থেকে বেশি আপনাকে পুলিশকে পয়সা দিতে হয়। পুলিশকে গভর্নমেন্টকে দিত, মানে কেসের জন্য গভর্নমেন্টকে দিতে হয়। কেসে 500 টাকা কোথা থেকে লাভ আসবে? 300 টাকা কামাই, 400 টাকা কামাই আছে, 500 টাকা কেস খেয়ে নিচ্ছে। তো গরিব কি বলবেন? আমার কি বলবো, ওই কথাই আছে। একই কথা। আমরা যে আছি এখানকার নাগরিক আছি, সব গরিব ছেলেরা আছে, খাটছে কামাচ্ছে। আপনাদের দাবিটা কি? এই যে উনি বললেন 500 টাকা করে পুলিশ, আমরা 300-400 ইনকাম করছি। পুলিশ তো মিডিয়া মাত্র, সরকার অ্যাকচুয়ালি সরকারি নীতিতে তাই হয়। যে বলবে তাই করতেই হবে, তো পুলিশে કોઈ ম্যাটার নেই। পুলিশকে আমি বলছিও না, যে ম্যাটার আছে সিবি। আর তো আর কেস পকেটে নিয়ে যাবে না, সে কেস দেওয়া মানে কেস, পুলিশ দেওয়া মানে তাই সে গভর্নমেন্টের ঘরে দেবে। টাকা আমরা খাটে কামাচ্ছে, 500 টাকা দিয়ে দিচ্ছি, কি করে চলবে? আপনারা পুলিশকে বলেননি? পুলিশই তো আপনার সামনে বলে। পুলিশ তো কেস করে, পুলিশ তো দিদি চাপ দিচ্ছে। তার মানে আপনি দিদি চাপ দিচ্ছে? কেস হবে, কোথা থেকে আনবো কেস? পুলিশ বলছে কোথা থেকে কেস আনবো? পুলিশ কেন, আমি বলছি কত কেস মারবে? পুলিশ কি করবে? অর্ডার আছে উপর থেকে, তো কেস তো মারতে হবে। নিশ্চয়ই। ও তো চাকরি আছে না ওর। না একদম একমত। পুলিশ একদম 1 নম্বর কাজ করছে, মগর সেন্টার কাজ করছে না। বাস এই কথা ছিল আমার। সব গরিব আদমি, অটো যত ছেলে আছে সব গরিব মানুষ। না নিশ্চয়ই, যারা অটো চালান তারা তো পেটের দায়ী রাস্তায় নামে। সব লোনে নিয়ে ভাড়া টাকা করে কামাচ্ছি, আর যদি 500 টাকা করে কেস দেয় তাহলে আমাদের পেট চলবে কি করে? আগে তো 100 টাকা করে কেস ছিল, আমাদের পেট চলছিল। এখন 500 টাকা যদি কেস দেয়, আমাদের অত কামাইনি, কোথা থেকে নিয়ে আসবো? তার মানে আপনারা কি বলতে চাইছেন আগে যিনি ছিলেন ভালো ছিলেন? হ্যাঁ, আগে অনেক ভালো ছিল। সিপিএম ছিল, 100 টাকা কেস ছিল। সিপিএম এর আগে 100 টাকা কেস ছিল, এখন 500 টাকা কেস। আমরা 400 টাকা কামাবো আর 100 টাকা বাড়ি থেকে নিয়ে এসে দিতে হবে। মানে সরকার এরকম তো ভাবতে পারে আপনাদের প্রচুর ইনকাম হচ্ছে, সিপিএম এর সব ইনকাম হচ্ছে কি? আমাদের বাড়িতে যে আমাদের বাড়ির লোক সেই বুঝে কি কত ইনকাম আছে কত না। বাড়ির লোক বুঝে কি আমরা কত ইনকাম করে নিয়ে যাচ্ছি না নিয়ে যাচ্ছি। যা করছে সব ভালো করছে, ঠিক আছে। আমরা গরিব লোক, আমরা বলছি। আর আমাদের আছে কি, আর দিদি এখানে আনন্দ আর একটু বেশি করুক। আর আমরা গরিব মানুষ আছি, আমাদের জন্য একটু কেসটা আছে, যে কেসটা জিতছে
এই কেসটা একটু কম করে দিই, এইটা আমাদের থেকে একটু অনুরোধ আছে কি দিদি আমাদের কোনো আমাদের এইটা রিকোয়েস্টটা একটু দেখুক কি গরিব মানুষদের যে ওটো ধরে নিচ্ছে 550 টাকা কেস দিচ্ছে, 500 550 টাকা 600 টাকা আমরা কামাচ্ছি, এই কেসটা একটু কম করে দিক। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस समुदाय के जड़ी को हाथों हाथ में वोट दो। এখানে ডাইলিউট করবেন না, আপনার যে যা বলছেন বাবু তারা ভেবে আপনাকে পার্টি बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस समुदाय के जड़ी को हाथों हाथ में इशारा में वोट दो। मजदूरों का प्यारा है, লড়াই করবে। मजदूरों का प्यारा है, गरीबों का इनकलाब जिंदाबाद। सीपीआईएम पार्टी कांग्रेस समाजवादी चटर्जी को भारी मतों से विजयी करे। लड़के ही जीना है, सीए से भी लड़ना है, इसके साथ भी लड़ना है, यहीं पे तो गुंडागर्दी के खिलाफ भी लड़ना है, हर चीज के खिलाफ लड़ना है। जो लड़ाएगा उसके लाल झंडा करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सव्यसाची चटर्जी को भारी मतों से विजयी करे। आने वाले लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम पार्टी कांग्रेस सव्यसाची चटर्जी को भारी मतों से विजयी करे। सबको शिक्षा सबको काम के मान पर आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सव्यसाची মেয়র নেই, এই মেয়র কেন নেই? এই ডিমান্ড তো আপনাদের থাকা উচিত। ডিমান্ডের কথা আছে, ডিমান্ড কেন না? ভোট হলে পাবলিক ভোট দিতে যাবে, মেয়র সিলেক্ট করবে। হ্যাঁ, যদি ভোটের যখন এ করবে অ্যানাউন্স করবে, একটা মেয়র না থাকলে বা একটা কর্পোরেশন না থাকলে বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা আছে, মানে কাজগুলো আপনাদের অনেক রকম কাজ। আমি হ্যাঁ অনেক রকম কাজ ডিস্টার্ব হচ্ছে। এটা তো মানে আপনারা সেই একতা হয়নি যে না মেয়র নির্বাচন করতে হবে, সে যেই জিতুক। এমএলএ কে এমপি কে এদেরকে তো মানে বুঝতে হবে, এদেরকে দেখতে হবে না কি করে মানে কেন। আপনি তো এটা আপনাদেরও বুঝতে হবে, আপনারা যদি ডিমান্ড না করেন। হ্যাঁ পাবলিক ডিমান্ড আছে তো, পাবলিক তো বলছে কেন ব্যাপারটা কি, কিন্তু মানে পেপারে আসছে, আমরা পেপারে দেখছি মানে কি আছে একটা গভর্নর থেকে মানে কিছু কাগজ ওখানে গভর্নর কাছে ওখানে ও তো বড় বড় ব্যাপার, তার জন্য তো তার জন্য তো মেয়র নির্বাচন আটকে যাবে না। না ওইটাই ব্যাপার আছে, মানে ওপর থেকে ক্লিয়ার। মানে আপনাদের এরকমই কি বোঝানো হয়েছে মানে হাওড়ার গঙ্গা থেকে লাইন এলে তবে মেয়র নির্বাচন হবে? না মানে আমি নিজের কথা বলছি, আমি পেপারে মানে যেরকম মানে পড়েছি মানে গভর্নর থেকে কিছু মানে ওখানে বিবাদ আছে, গভর্নর থেকে আর চিফ মিনিস্টার থেকে কিছু বিবাদ আছে এদের, মানে ওখানে বিল কি আছে। গঙ্গার চিফ মিনিস্টারের বিবাদের কারণে মানুষ স্যাক্রিফাইস করবে, কি বলা যায়? সেটা হাসি মুখে মেনেও নিচ্ছেন? না হাসি মুখে মানবার কথা নেই, কথাটা আছে কি মানে এটা বড় হাতে সব আছে। এখন থেকে যখন বের হবে তাহলে পাবলিক তো ডেলি চাইছে, পাবলিক তো ভালোই চাইছে আমাকে এই কাজ করতে হবে, নোংরা আছে নোংরাগুলো সাফ করতে হবে, যা মানে লোকাল পাবলিক আছে ওটা তো। বাঙালি থাকি আমি চেষ্টা করছি, আমি 50% বলতে মানে চেষ্টা করছি, 50% आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो बात सही है। कोई भाषा बोले, इसमें क्या है? जहाँ तक देखिए कारपोरेशन का सवाल है, कारपोरेशन में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये तो पब्लिक में जागरूकता होना चाहिए। पब्लिक को ये बात अपने एमएलए से अपने एमपी से सबसे पूछना चाहिए कि भाई कारपोरेशन में बॉडी क्यों नहीं बन रहा, कारपोरेशन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अभी दो साल से, हाँ 2 साल तीसरा साल तीसरा साल चल रहा। हाँ 3 साल चल रहा। तो अभी जो भी हमारा जैसे 16 नंबर वार्ड 15 नंबर वार्ड ये सब जो काउंसिलर लोग हैं वो सब अपना लिखता है, एक्स काउंसिलर लिखता है। तो भाई तो काउंसिलर है ही नहीं, अब आप काउंसिलर के पास में जाते हैं काम के लिए तो काम नहीं हो पाता। काउंसिलर तो अभी पावर में नहीं है तो आपका काम कैसे करेगा? पावर में दिक्कत आप लोगों को झेलना पड़ता है, तो झेलना ही पड़ेगा, बहुत सारे घूमना पड़ता है कोई छोटा काम के तो अब एमएलए के पास में जाइए,
अब एमएलए एक्टिव है तो एमएलए आपको काम करेगा, अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं आप अपना काम करवाते थे, एमएलए आपका काम करेगा। और आदमी तो एमएलए पास टाइम तो उन लोगों का तो काम रहता है, वो लोग कैसे दौड़ेंगे। और हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब तक आपको कॉरपोरेशन में जब तक मेयर नहीं बैठेगा, जब तक आपका जो है कि मतलब वार्ड कमिश्नर नहीं रहेगा, तब तक लोकल आदमी कैसे काम होगा लोकल आदमी का। इसके लिए तो मतलब अब जहाँ तक है कि मेरा मानना है कि ये बात अगर दीदी तक पहुँचे तो दीदी हावड़ा का इलेक्शन फ़ौरन जल्दी करवाए। দিদি তো হাওড়ায় নবান্নই বসে আছে, इलेक्शन करवाए। দিদি তো হাওড়াতে নবান্নতেই বসেন। हाँ, नवन्य तो दीदी से अनुरोध है कि दीदी जो है कि हावड़ा को देखे, हावड़ा का इलेक्शन करवाए। हावड़ा में काम हो रहा है, काम तो बाधित हो रहा है, काम डिस्टर्ब हो रहा है, काम तो है। जैसे देखिए, बॉडी रहने से काम का जो है कि वो रेंज अलग होता है, लेकिन अभी जो है कि मतलब कि उसको काम जो है सही मायने में नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या है, सफाई का मामला तो सफाई हो रहा है। यही आपका सब नाम चीज़ें। मेरा नाम नौशाद है। आपका नाम भी नौशाद है, ये पूरा नौशाद एक आईएसएफ का। हाँ, हम आईएसएफ का नहीं है, हम जनरल आदमी है, लोकल आदमी है। हम जिसको ये है, हम मजाक से बोल रहे हैं। ठीक है। আপনারা দেখলেন হাওড়ার দীর্ঘদিন অর্থাৎ 3 বছর ধরে নির্বাচন নেই, মেয়র নেই, যার ফলে এখানকার লোকেদের, এখানকার জনসাধারণ, এখানকার মানুষদের, সাধারণ মানুষদের নানা রকম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। হাওড়া সদর কেন্দ্রের প্রার্থী সিপিআইএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। এই সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে যেখানে আছেন, এটা একেবারে কি এরিয়া? পিলখানা। একদম গলিতে গলিতে ঘুরছেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ সাথে ঘুরছেন। আমরা মানুষের সাথে কথা বলছি, বিভিন্ন মানুষ থেকে জানার চেষ্টা করেছি। সব্যসাচী তাকে পেয়েছি দু একটা কথা জানার জন্য। এখানকার যে হাওড়া বেসিক্যালি শিল্পাঞ্চল ধরা হয়, এই শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে আপনার আলাদা কিছু প্ল্যান বা কিছু আছে? না, আমার প্ল্যানের উপর তো দাঁড়িয়ে শিল্পাঞ্চল করে উঠবে না। শিল্পাঞ্চলের জন্য দেশের নীতি বদলের দরকার। এই যে মোদী সরকার যে নীতিতে চলছে, শিল্প কেন, এতে করে ক্লাবও চলে না। তার কারণ হচ্ছে মোদির আমলে দেখা গেছে গোটা শিল্পগুলো বিক্রি করছে, ও দেশ বেচা ছাড়া আর কোনো কাজ করছে না, সব কিছু বিক্রি করছে। আদানি আম্বানি, ওদের শিল্প মানে হচ্ছে দেশের বড় লোকের সংখ্যা বাড়লে মোদি দেখায় দেশ বাড়ছে। তা আমার বক্তব্য, আদানি আম্বানিকে দেখিয়ে তো ভারতের আসল চিত্র দেখানো যাবে না। ভারতের আসল চিত্র দেখাতে গেলে আমাদের এটাও বলতে হবে, দেশে এই মুহূর্তে বেকারের সংখ্যা সবচাইতে বেশি স্বাধীনতার পর। দেখান সেগুলো। কারণ এই হাওড়া শহরে যেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি, একেবারে ঘরে ঘরে, একদম বাড়ির সিঁড়ির নিচে মানুষ তার শিল্প বা ছোট ছোট কাজ নিয়ে বেঁচে থাকেন। আমি দেখেছি বহু নানা রকম ছোট ছোট কুটির শিল্প উঠে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে বাজপেয়ীর পর থেকে যে বৈদেশিক নীতি চালু করেছিলেন, সেই সময় এমন কিছু পরিবর্তন আসে যেখানকার ছোট ছোট, হ্যাঁ, তারপর এই একই অবস্থায় ভারত আমাদের বলুন প্রশ্নটা এখন কি বলছি? প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই শিল্প ফেরাতে হবে। শিল্প ফেরানোর আগে এই সরকারগুলোকে বদলাতে হবে, তাছাড়া হবে না। শিল্প ফেরানোর জন্য পরিকল্পনার অভাব। পরিকল্পনা করার জন্য একটা যোজনা কমিশন ছিল, নেহরু একটা যোজনা কমিশন বানিয়েছিলেন, সেই যোজনা কমিশন চলতো, এ মোদি এসে তুলে দিয়ে তাকে নীতি আয়োগ করেছে। তো হবে নাকি এরকম একটা মোদির মতন লোককে দিয়ে দেশ চলবে? ও আদানির কোম্পানিতে চাকরি পাবে কিনা সন্দেহ, যদি ঠিক করে চাকরি পেতে যায়। বিজেপির ট্যাগটা যদি উঠে যায় আর বিজেপি ওই কী বলে মোদি হাওয়াটা যেদিন চলে যাবে, আদানির কাছে অ্যাপ্লিকেশন করলে আদানিও চাকরি দেবে না। ও এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে চাকরি চাইতে এসছে, আদানি তখন ওইভাবে ব্যবহার করবে। শেষ করে দিই না? আপনারা দেখলেন সব্যসাচীদার কথা। ক্যামেরাম্যান গৌতমের সাথে আমি শুভাশিস, রাই বাংলা থেকে। নমস্কার। ওই দিকটা থেকে
এবারের আপনি এখানকার হাওড়া সদরের প্রার্থী, সিপিআইএম প্রার্থী, কিন্তু হাওড়া সদরের যে মেন প্রবলেম এখানকার দীর্ঘ 3 বছর, প্রায় 3 বছর ধরে, লোকসভা ভোট যদি বলেন সেটা প্রায় 6 বছর ধরে হচ্ছে। প্রায় 6 বছর ধরে এখানকার কোনো মেয়র নেই, ভোট হয়নি, ভোটও হয়নি। এখানকার নানা সমস্যা, নানা সমস্যার থেকেও বড় কথা যেটা আমরা বলছি যে মোদি যদি এবার জিতে যায় তাহলে দেশেও ভোট হবে না। হ্যাঁ, অলরেডি বলা আছে এক দেশ এক ভোট, এটাকে কিভাবে দেখছেন? এটাই হচ্ছে কথা, যে এক দেশ এক ভোট একই কথা তো, যে কথাটা হচ্ছে যে যেটা আমরা এখানে দেখলাম হাওড়াতে, সেই জিনিসটাই গোটা দেশে আগামী দিনে হবে। যেসা হাওড়া মে 6 বছর ধরে ভোট হলো না, ওই রকমই চলবে, গোটা দেশে ভোট হবে না, যদি মোদি এসে যায় হবে। মমতা ছোট করে হাওড়ায় দেখিয়েছে, মোদি এটা গোটা দেশে করবে। আপনার হাওড়ার জনসাধারণ প্রতি, আপনি তো নিজে গলিতে গলিতে ঘুরছেন, আপনি এখানে হাওড়া একটা পুরনো শহর, হ্যাঁ, একেবারে 500 বছরের পুরনো শহর, কলকাতার থেকেও বলতে গেলে পুরানো, অনেক পুরানো। সেই শহরের মেন কেন্দ্র হাওড়া সদরে আপনি প্রার্থী, আপনি এখানকার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন? মানে এই অর্থ গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে। এই যে বললাম, ছোট করে মমতা দেখিয়েছে ভোট বন্ধ করে, আগামী দিনে মোদি দেখাবে গোটা দেশে যদি ওরা জেতে। তাই জন্যে মোদিকে এবারে কোনোভাবে যাতে ও ফিরতে না পারে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। আর সেই সঙ্গে মোদির যারা ছোট সংস্করণ এখানে তৃণমূল যারা দালালি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে রায় দিতে হবে। খুব পরিষ্কার কথা, তৃণমূলকে বাদ দিয়ে বিজেপিকে হারানো যাবে না, আর বিজেপিকে বাদ দিয়ে তৃণমূলকে হারানো যাবে না। আমি কিছু লোকের সাথে কথা বলছিলাম, তারা যেমন এই গঙ্গা দিয়ে মেট্রোর চালকে খুব উৎসাহ। হ্যাঁ, এটা বামফ্রন্টের সময়কার প্রজেক্ট। ওরা বলছে যে এরা নরেন্দ্র মোদী তো করলো। কে নরেন্দ্র মোদী করলো? শুরুটা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রণব মুখার্জিরা করেছেন, আর এটা চালিয়ে যাচ্ছে, একটা প্রজেক্ট শেষ হয়েছে। এখনো পর্যন্ত শিলান্যাসের আপনি দেখতে পাবেন, যেখানে বলা হয়েছে যে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রণব মুখার্জি তারা একসাথে ওটার শিলান্যাস করছে, আর এখন তারা বিজেপি বলছে বিজেপি নাকি করেছে। এ তো বাম পরিকল্পনা করতে পারলে সেটা বামপন্থীরা করে। বিজেপির কাজ হচ্ছে যোজনা কমিশন খতম করা। নীতি আয়োগ করেছে, কোথায় যোজনা কমিশন? ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে যোজনা কমিশন ছিল, প্রত্যেক বছর 5 বছর অন্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করত। ওরা যোজনায় বিশ্বাস করে না, বিজেপির প্ল্যানিংয়ে বিশ্বাস নেই, বামপন্থীরা প্ল্যানিংয়ে বিশ্বাস করে। তাই জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের বলতে হবে, তৃণমূলের বিরুদ্ধেও বলতে হবে। এরা দুজনেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে, কোনো পরিকল্পনা এদের নেই। पुलिस से मत करो, ममता से मत करो, मोदी से मत करो, हमसे मत करो, किसी से डरना नहीं, डरना नहीं। सीपीआई उम्मीदवार सब्यसाची चैटर्जी आज इस इलाका पे आया वोट मांगने के लिए। इसमें कोई गलत नहीं है, वोट मांगने के लिए, मांगने के समय है, मैं आ गया। चुनाव है सामने देश का, और मेरे लिए जैसा बाकी उम्मीदवार लोग भी आ रहे हैं, आएंगे, वही है जनवादी राष्ट्र का चरित्र। लेकिन आज हमारा देश भारत एक संकट के परिस्थिति में है। आप लोग हर रोज सुबह में एक बात कहते हो, जो दिन कल अच्छा नहीं है, बाजार अच्छा नहीं है, रोजगार अच्छा नहीं है, परिस्थिति पहले अच्छे थे, अभी अच्छा नहीं है। लेकिन ये बोलने के बाद
कितने बार आप लोग सोचे जो क्यों परिस्थिति अच्छा है। सवाल यही है क्यों परिस्थिति अच्छी नहीं है। हम लोग ये सवाल पूछने के लिए आए। पिछले 10 साल हमारा देश 2014 से 2024 तक ये मोदी सरकार के जमाने में एक भयानक संकट के सामने है। हमारा आजादी के बाद बेरोजगारी पूरा देश में सबसे ज्यादा है। इस समय सरकार पूरा पहल बना के कोई बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक के बढ़कर एक नीति बना रहा है, जिस नीति की वजह से हमारा देश का जो आदमी है, जनता है, उनके सामने आज एक अनिश्चित भविष्य आ रहा है। ऐसा एक सवाल है, हमारा नागरिकता का सवाल। कौन उठा रहा है सवाल? अगर पूछूं जब भारत का नागरिक ये बात को साबुत करने के लिए हमारे पास क्या है और देश का प्रधानमंत्री के पास क्या है? क्या है हमारे पास? एपिक कार्ड है, 14 डॉक्यूमेंट्स है, जो कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लेके हम वोट दे सकता हूं। और ये 14 डॉक्यूमेंट्स में 14 पर्पस सर्व होता है। वोट दे सकते हैं, कॉमन काम होता है, और बाकी एक एक काम होता है एक एक डॉक्यूमेंट से। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस से ड्राइविंग होता है, पासपोर्ट से एक देश से और एक देश जा सकते हो, आधार से सरकार का सारे के सारे जो स्कीम है, इसका जो सुविधा हम लोग के पास आते हैं। हर चीज का एक एक लक्ष्य है और इसका कॉमन लक्ष्य है, हम लोग वोट दे सकते हैं। भारत का नागरिकता का प्रमाण है, हम वोट दे सकता हूं क्या नहीं सकता। कोई राष्ट्र अगर जनवादी राष्ट्र होता है, कभी कोई नागरिक के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। पहला सवाल यही है जो मोदी राज में हमारा देश का जो आदिवासी है, नागरिक है, इनके ऊपर सवाल उठाया गया है। क्या सवाल है? हम सबके ऊपर एक सवाल है, हम भारत के आदिवासी है क्या? असम में देखा आपने 12 लाख गरीब आदमी, एनआरसी में उनका नाम आया। कौन है? रिलीजन के ऊपर इसके बंटवारे कहीं जाए, हिंदू है, गरीब आदमी। बंगाल में उन्होंने आग लगाने का कोशिश किया। क्या बोला? ये जो नया सीए बनाया, क्या है इसमें? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या किया? बोला जो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1924 जो कानून बना था, इंडिया में आने के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है बोल के वो बनाया था ब्रिटिश राज उस समय का। और वो भी बनाया था देश में हमारा आजादी का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में शामिल हुआ जो विप्लवी लोग थे, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस कानून। और एक है फॉरेनर्स एक्ट 1946 में। इस फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट इनटू इंडिया एक्ट जो रिलैक्सेशन देने के लिए एक कानून बनाया। ये नागरिकता का कानून नहीं है, रिलैक्सेशन देने का कानून है। क्या रिलैक्सेशन है? बोला है 2015 का 31 दिसंबर तक जो आदमी भारत में आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके कुछ देश का नाम दिया, और उस देश में जो लोग जो मेजॉरिटी धर्म का आदमी है, उनके द्वारा शोषित हो रहा है, उनके लिए नागरिकता दिया जाएगा। और इसमें म्यांमार नहीं है। क्या है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। क्यों है?
क्योंकि सरकार चाहता है बंटवारा करना। हम लोग बोला सीए नागरिकता देने का कोई कानून नहीं है, नागरिकता छीनने का कानून है। ये गलत है, ये असंवैधानिक है। हमारा संविधान बोलता है जो किसी आदमी से, किसी आदमी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब एक आदमी से और एक आदमी को राष्ट्र कभी अलग से नहीं देख सकता है। ये हमारा संविधान का निदान है, इसको परिवर्तन किया गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गया, पहला दिन जब इसका केस हुआ, विकास बाबू थे, मैं थे और हमारे साथ जितने सारे वामपंथी लॉयर्स हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट का सब लोग हम लोग गए। बहुत सारे संगठन की तरफ से मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग बोले थे कैसे लागू किया जाए। असम का जो रिपोर्ट आ रहा है, सबसे बड़ा चीज यही है जो गरीब आदमी इसमें मरेगा, कैसे मरेगा। वो लोग बोल रहे हैं नागरिक नहीं। अरे भाई, अगर नागरिक नहीं है तो प्रधानमंत्री जी भी तो नागरिक नहीं है, उनके पास भी तो वही एक ही डॉक्यूमेंट है। सवाल तो उठ ही सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। बोलेगा आधार है, पासपोर्ट है, इसके अलावा क्या है। अलग से कोई आदमी तो नहीं है, राजा बाबू तो नहीं है, नवाब तो नहीं है। तो बात यही है, क्यों लाया गया इसी। आप लोगों को मैं एक बात बताऊंगा आज। हम लोग सोचते हो बीजेपी तो किया, फोन लगाओ। 2015 में इस हावड़ा का मेयर थे, मेयर डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती। डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती जब मेयर थे हावड़ा का, प्रसून बनर्जी जब एमपी है हावड़ा का 2015 में, इस हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के काम करवाया था और वो काम करके हमारा इंफॉर्मेशन दिया था। वो लोग जानते हैं किसी को निकाल नहीं सकता है, लेकिन वो लोग ये भी जानते हैं कि हम सारे आदमी उन लोगों के पास एक डेटा है। डेटा जो आजकल यंगस्टर्स जो लोग है वो जानते हैं डेटा का मतलब क्या है। आजकल की दुनिया में जिसके पास जितना डेटा है वही ये दुनिया में राज करता है। डेटा में जिसका अधिकार है वही दुनिया में राज करता है। एनपीआर, एनआरसी, सीए डेटा लेने का कानून है और ये हमारा नागरिकता छीन के एक स्लेव बनाने का मतलब दास बनाने का एक कानून बनाया। हम लोग बोल रहे हो लड़ना पड़ेगा, डरना नहीं। तृणमूल कांग्रेस आज रामनवमी में एमपी साहब जाकर वोट मांग रहा है। आप लोग देखा कल रामनवमी का जो मिছিল है उसमें हमारा तृणमूल कांग्रेस के एमपी बैनर लगा के प्रसून बनर्जी को वोट दो बोल के जुलूस में निकल पड़ा और बीजेपी का उम्मीदवार भी निकल पड़ा। तो कहां जाएगा आदमी? कौन है बीजेपी और कौन है तृणमूल? पूछना नहीं पड़ेगा। आज समय आ गया, सवाल उठाना पड़ेगा। 2021 में लोग आके बोला था हम नहीं आएंगे तो आप हमें को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। अरे बीजेपी का दलाल तो आ ही गया। बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल कौन है? 1998 में बंगाल में कौन लाया था बीजेपी को? हाथ पकड़ के बीजेपी को लाया था ममता बनर्जी बंगाल में। तृणमूल आके बोलेगा जो हम बीजेपी विरोधी है और वो भी हमको मानना पड़ेगा। आज देखिए, और ये बात वही फुट अकाउंट, ये हमारा संविधान बोलता है। कोई क्या कर रहे हैं प्रसून बनर्जी साहब? और उसके बाद हम लोग इनके ऊपर, तृणमूल के ऊपर विश्वास करूंगा? ये कोई वोट मांगने का जगह है? धर्म कोई वोट मांगने का चीज होता है? देश का चुनाव राम के नाम होगा, ना के नाम होगा? नहीं, चुनाव जनता के लिए है। भगवान बहुत ऊपर तक
चुनाव है, हमारा पसीना का दाम मिटाने के लिए चुनाव है, कीमत देने के लिए चुनाव है। लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर बंटवारा का राजनीति कर रहे हैं। 2015 में ए प्रसन्न बनर्जी और ए रविंद्र चक्रवर्ती हावड़ा का मेयर और एमपी थे, और दोनों मिलकर साजिश करके हर डेटा को अमित शाह के पास बेचने का साजिश किया था, और ममता बनर्जी सब कुछ जानती थी और जानती भी है। उसीलिए इस चुनाव में दोनों को हराना पड़ेगा, दोनों को एक साथ, तृणमूल और बीजेपी को, क्योंकि जो तृणमूल है वही बीजेपी है। अमित शाह का सबसे बड़ा दलाल है ममता बनर्जी। इस बंगाल में जैसा आरएसएस का प्रोजेक्ट है, कम्युनिस्ट को खत्म करो, मुस्लिम को खत्म करो, क्रिश्चियन को खत्म करो, और पूरा देश में रही सत्ता गद्दार शोषक कुछ रहेगा आदानी अंबानी की तरह, जनमत को खत्म करके जो राज करेगा और हमको मानना पड़ेगा। ये दलाल को वोट देंगे आप? बताइए। आज ये देश का हालत बन गया, हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। मेरा नौजवान साथियों के पास मेरा पुकार यही है कि दोस्तों, बीजेपी से डरना नहीं, लड़ो लड़ो, और लड़ने का समय आ गया। ये देश बचाने का सवाल है, हमारा हिंदुस्तान को बचाने का सवाल है। जो लोग राष्ट्र को शोषक में रूपांतरित किया है, उनसे हमारा राष्ट्र को छीन लेने का सवाल है, और उसको छीन के हम रहेंगे। रोटी कपड़ा मकान के लिए चुनाव हो रहे हैं, मर रहा है गरीब आदमी हर दिन। इस सरकार लोगों के वजह से गरीब आदमी मर रहा है। इनसे देश को बचाना पड़ेगा। उसीलिए वामपंथी लोग इस चुनाव में शामिल है। हमारा सवाल यही है, हम लोग बोला कि इस बार अगर मोदी आ जाए तो देश में कोई वोट नहीं होगा, क्योंकि मोदी फासीबाद कायम करेगा इस देश में। इससे देश को बचाने का चुनाव है। वामपंथी लोगों का ताकत अगर संसद में बनेगा तो आम जनता का जो सवाल वो उठने का मौका मिलेगा। नहीं तो आम जनता को जैसे रविंद्र चक्रवर्ती, प्रसन्न बनर्जी ने 2015 में मिल के हमारा डेटा को चोरी किया, वैसा ही हमारा हालत बना देगा। तो लड़ना पड़ेगा दोस्तों। आप लड़ेंगे? 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 आवाज तो बुलंद करना पड़ेगा। लड़ेंगे? उस दिन बूथ छीनने के लिए आएगा तो लड़ेंगे, बूथ रक्षा करेंगे। तो आवाज दो, आवाज दो, बीजेपी हटाओ, तृणमूल हटाओ। और हर जगह पे जो दलाल है, दलाल लोगों को हटाओ, और देश और बंगाल को बचाओ। मतलब खुद को भी बचाओ और लड़ के बचाओ। लड़ो, डरो मत, लड़ो, डरो मत, लड़ो, डरो मत, लड़ो, डरो मत, लड़ो, 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 डरो मत, लेकिन लड़ो। मैं बोला था उस दिन, अभिषेक बाबू इस दिन मीटिंग में बोल रहे थे ना, कीने में मोदी ना दीदी, मोदी ना दीदी। तो मैं बोला एक ना आगे बढ़ाना पड़ेगा। ना मोदी, ना दीदी, ना मोदी, ना दीदी, ना मोदी, ना दीदी, ना मोदी, ना दीदी। एक ही है लाल झंडा। लाल झंडा पकड़ो, जो आप लोग बोलते थे पहले। ज्योति बसु का समय अच्छा था, बंगाल में शांति थे, एक चीफ मिनिस्टर थे जो बोल पाते थे। कोई दंगा बनाने के लिए आएगा तो उसको देखते से गोली मारो। सरकार को सरकार का काम करने दो, पुलिस को पुलिस का काम करने दो। वैसा चीज करना पड़ेगा। बंगाल को बदलो, देश बदलेगा। उसी लिए आया था, हसवा तुरा तारा में वोट दीजिएगा। इंकलाब, इंकलाब,